Hello and welcome guys. Welcome back to my channel and in this video we'll study about respiration. Video आगे बढ़ने से पहले I like to share that I will use both the languages, Hindi as well as English. Okay, so that you are comfortable. I'll use like the mixed language. Okay. Now moving ahead, I have completed nutrition in plant as well as animal. That includes digestion and all the stuff. And this is the second most important process in life processes, that is respiration, right? So इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, it's like wait, yeah. So इसमें हम पढ़ेंगे respiration क्या है, what is respiration, its type. We know that there are two types of respiration, that is aerobic and anaerobic. Then we'll look into the respiration in plant. उसके बाद हम देखेंगे respiration in animal. So if you don't want to study any of this, then you can skip the video, or else like you can continue if you want to study. If you want to study respiration. So basically respiration होता क्या है? First question is this. हमें पता है कि respiration includes breathing in, breathing out. But what is respiration? So एक simple definition, बहुत ही simplify करने का try. I'll do like this. So respiration, what respiration? See what happened. We eat food, right? So this food releases some energy, right? So this energy releasing thing is known as respiration. And respiration includes breathing in as well as breathing out. Okay, I hope it's clear, like it's simple. So see, I'll just make a diagram to, this is my cell and there is a glucose from food and oxygen from air. This is glucose, this is oxygen. Now what happened, the cell uses both of them to release this carbon dioxide and water, and the main product here is energy. Why do we need energy? हमें energy क्यों चाहिए? ताकि we can do all the physical work, we can perform our daily activities like walking, running, everything, thinking. So क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज फ्रॉम द फूड वी ईट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये सेल लेती है, सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, CO2 रिलीज करती है, वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट ओवर हेयर इज एनर्जी. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? कुछ सेंस बना, लाइक कुछ क्लियर हुआ रेस्पिरेशन का? इफ नो यू कैन पुट योर कमेंट. रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस में होता है. बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. सी हमने फूड जो खाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में पहले डाइजेस्ट हुआ, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, दैट इज ग्लूकोज. उसके बाद ऑक्सीजन यूज किया और सेल में रेस्पिरेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन. तो क्या हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ताकि एनर्जी रिलीज हो. सो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज रेस्पिरेशन. और ये जो है ये डिफरेंट स्टेजेस में होती है, एक सिंपल स्टेप में नहीं हो सकता है. सो ये स्टेजेस में होती है एंड हर एक स्टेज में बहुत सारी एंजाइम्स चाहिए होती हैं. So like respiration, now it's clear, it's a biochemical process or you can say it's a life process जिसमें enzymes की help से हम जो food है उसको oxidize करते हैं and energy को release करते हैं, that is respiration. अब we can like we'll look into how this happens, what are the basic, very basic process. We won't look in like हम animal का नहीं देखेंगे, plants का नहीं देखेंगे, just very basic thing कि respiration में actually होता क्या है, राइट? सो ये जो रेस्पिरेशन होता है, दिस रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस का एकदम अपोजिट होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि वी यूज समथिंग टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसमें वी आर यूजिंग ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट? फोटोसिंथेसिस में वी यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड एवरीथिंग टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. इसमें हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एंड देन वी आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी एंड वाटर, राइट? तो ये अपोजिट है किसके, फोटोसिंथेसिस के. नाउ लेट्स सी कि इसमें होता क्या है. ओके, सी सो सबसे पहले एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट, प्लस हम क्या यूज करते हैं, फोस्फेट.
दिस इज लो एनर्जी फॉर्म, और हमारे पास जो हाई एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। और यहाँ पे हम एनर्जी यूज करते हैं। एनर्जी यूज क्यों करते हैं? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। अब यू लास्ट कि हम एनर्जी यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये कैसा लॉजिक हुआ? एडीपी हम पहले हम एडीपी यूज कर रहे हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फोस्फेट प्लस एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो डाई एंड ट्राई में यहाँ पे क्या चेंज हो गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एंड द पावर ऑफ देयर एनर्जी। लाइक एनर्जी का देख सकते हैं कि ये लो एनर्जी होती है, दिस एडीपी, एंड दिस एटीपी इज हाई एनर्जी। तो पहले तो हम इस लो एनर्जी से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद व्हाट विल डू, विल यूज दिस एटीपी and this will produce ATP. This is ATP, this is ADP plus phosphate it will produce and plus energy. So basically क्या हो रहा है, हमारे जो बॉडी है इसमें एक बार में कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती कि अब मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे चलना है तो तुरंत में लाइक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। ये क्या हो रहा है, पहले ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ताकि जब मुझे यूज़ हो तब मैं वापस इस एनर्जी के फॉर्म को ब्रेक कर सकूं। किस में? लो एनर्जी में जो यूज़ होगी फोस्फेट एंड देन एनर्जी, दिस एनर्जी। सो बेसिकली रेस्पिरेशन के ये बेसिक से रूल्स होते हैं या यू कैन से इक्वेशन होते हैं, बट when we'll study about the respiration in yeast, in animals, in plants, जो बेसिक इक्वेशन होगी वो चेंज होती जाएगी। सो आई होप अब तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, नथिंग एल्स। ओके, रेस्पिरेशन क्लियर हुआ। नाउ विल लुक कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन। किस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, किस में नहीं होता है। सो सी, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो जहाँ पर ऑक्सीजन की यूजेज में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको एरोबिक बोलते हैं। जहाँ पर वी डोंट यूज ऑक्सीजन, आई मीन द ऑर्गेनिजम्स डोंट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ईस्ट जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ओके, उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, बट in case of human or like simple organism, complex organisms, oxygen is the main thing for respiration. So we divide respiration into two types, that is aerobic and anaerobic, based on the usage of oxygen, whether the organism is using oxygen or not. If yes, then it's aerobic, if no, then it's anaerobic. Now we'll look into the equation of both of them, right? So okay, so type of respiration we were studying. See, there is a problem in the background and you know the location I am shooting, so that's the reason I am turning my camera off right now. See, तो अब we'll study about the type of respiration. So दो टाइप के respiration होते हैं, that is aerobic and anaerobic. तो पहले हम equation देखते हैं aerobic के लिए. Let's see the equation for aerobic respiration, what happens in that. So see, if I am having glucose, अगर मेरे पास ग्लूकोज है and the glycolysis is taking place, glycolysis means that conversion of this glucose into pyruvate acid. This is U. This takes place in cytoplasm. Don't forget, there are many questions in like your exam and your textbook, where does glycolysis of glucose takes place? So the answer is cytoplasm. Now what happened, this acid, pyruvate acid, what will happen, this will convert into carbon dioxide, water and 38 ATP of 38 molecules of energy, and this process takes place in mitochondria. See, we have studied cell और उसमें mitochondria, cytoplasm क्या होता है ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया. So if you haven't watched the video, just go in my channel and there is a playlist named as biology, उसमें होगा.
राइट. सो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है वो पायरुवेट एसिड या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में वाटर प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिलीज होती है. हाउ मच एनर्जी इज रिलीज? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में. और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल. ये यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड. क्रैब साइकिल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये रिलीज होती है. सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन इज ATP रिच रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आ जाते हैं, तो फिर बहुत होता है ये. नाउ अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं. ठीक है. इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि what is the site of the respiration, what is the site of respiration in aerobic cell, so your answer should be mitochondria. And if it's asking about the glycolysis, then it is cytoplasm. Okay. So anaerobic, जैसा हमने पहले पढ़ा था, like we have studied earlier, that this respiration doesn't need oxygen. So what happened? In the absence of oxygen, some organisms produce energy, or they perform the breakdown of their food glucose into some there is some byproduct such as ethanol or carbon dioxide, which is okay for their body, so they perform anaerobic respiration. So basically it is respiration which takes place without oxygen, right? Without oxygen. I think you can understand this writing because I am writing as well. So the equation will be glucose, this is glucose which converts into pyruvate in absence of oxygen, and it will produce ethanol, C2H5OH. you will learn this in next chapter, maybe carbon and its compound, CO2 and only two molecules of ATP. अब ये जो इक्वेशन है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? ईस्ट. तो हम बेसिकली ये किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट की बात कर रहे हैं. ओके. अब यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि जो ह्यूमन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में. व्हाट? ह्यूमन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. सो सी, बेसिकली हम नेचुरली जो कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम एरोबिक बोलते हैं. बट जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सडनली बहुत एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या एनीथिंग which require lots of physical work, so in that time we perform anaerobic respiration, right? How? Let's see, suppose this is your glucose. The glycolysis is taking place in cytoplasm. I'm repeating, these are important thing. And the pyruvate or the pyruvic acid, whatever you pronounce it as, in the absence of oxygen, okay, glucose, pyruvate, in the absence of oxygen, where it is in the muscle tissue, nowhere else, okay, in the muscle tissue. So what happened? Two molecules of lactic acid. Now this lactic acid is responsible for cramps. What happens? Suppose you are doing some exercises. उस टाइम पे क्या होता है कि यू से कि सडनली क्रैम्प आ गया या सडनली बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, आई वोंट डू द एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम. तो उस टाइम पे क्या होता है? दिस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस बिकॉज आप बहुत ही रेंडमली एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करो. अगर आपके पास हैबिट हो जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा ऐसे इवॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग वो थोड़ा सा यूज टू हो जाती है. बट एज इट इज़ नॉट यूज टू, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसको आदत नहीं होती ना इतना ज़्यादा रेस्पिरेशन करने का उतने मिनट्स या उतने सेकेंड्स में. सो वो क्या करती है? रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन कर लेती है आपकी बॉडी. सो वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली टू लैक्टिक एसिड एंड ATP में ब्रेक हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ द प्लेस कौन सी है? दैट इज मसल टिश्यू. And ये जो lactic acid है that is responsible for cramp in your body. So now if there is a cramp in your body, then there must be some alternative to solve them, right? So this cramps, the lactic acid produce cramp
and we can like what we can say, we can get a relief from these cramps by taking a hot water shower or a massage. Understood? So basically we have completed type of respiration. They are anaerobic, aerobic. Okay, one in presence of oxygen, one in the absence of oxygen. I think you can give the difference now. Okay, how far you have gone? 10 miles, 10 kilometer, 20 clicks. Okay, almost to the end of the drive. Long distance drive. When your mitochondria stop performing cellular respiration, oh, of course you should cry because you'll die. But if I told you photosynthesis and cellular respiration are opposite reaction, respiration are opposite reaction. Yeah, I told you, like, right? But what you should do, photosynthesis की पूरी इक्वेशन लिखना और रेस्पिरेशन की पूरी इक्वेशन लिखना एंड देन टेल मी कि अपोजिट है या नहीं है. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक. अब हम क्या कर रहे हैं, मेन चीज पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है. सो आई थिंक लेट्स बिगिन विद द प्लांट. सो ओके, लेट मी चेंज द कलर. हम तीन चीज पढ़ेंगे. पहला है रेस्पिरेशन इन रूट्स, स्टेम्स एंड देन लीव्स. सो सी, प्लांट्स जो है वो थोड़े से सिंपल है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल. सो लेट्स से दिस इज माई प्लांट or this is the tree, but let's assume there is a plant as well, and these are the roots. Okay, so first we'll look into the roots. So roots में क्या होता है, ये जो roots हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. ओके, सी सपोज सॉइल पार्टिकल्स हैं तो सॉइल पार्टिकल्स में इतना गैप तो होगा ही कि एयर उनके बीच में होगी, तो वहाँ से वो डायरेक्टली जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कहाँ से करते हैं, रूट्स बाय रूट्स हेयर. सिंपल है. नाउ स्टेम्स, इसमें अब दिस इज लिटिल लाइक कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट वी नो कि जो हमारे प्लांट्स हैं दे हैव स्टोमेटा इन देम, और स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, वी हैव गार्ड सेल्स. ओके, सो क्या होता है कि जो है स्टोमेटा, यहाँ से गैसेस आती हैं जाती हैं एंड देन इट डायरेक्टली डिफ्यूजेस इन द सेल बॉडी, प्लांट सेल बॉडी. सो फॉर स्टेम्स इट इज डिफ्यूजन. सी, रूट्स में बेसिकली जो मेन प्रोसेस है दैट इज डिफ्यूजन, बट किस में होता है डिफ्यूजन, विल लुक थ्रू दैट, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है दैट. सो रेस्पिरेशन इन रूट्स, इसमें डिफ्यूजन होता है बाय रूट से. रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, सो इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा होता है. सी, बेसिकली स्टोमेटा आर फॉर द लीव्स, बट फॉर स्टेम्स ऑल्सो इन न्यू प्लांट्स वी कैन कंसीडर देम. बट अब क्या होता है, ये पेड़ जो है दैट इज लाइक लिटिल ग्रोन अप, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होगा वो लेंटिकल से होगा. आई थिंक जल्दी कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है. रूट्स में रूट हेयर से, स्टेम्स में लेंटिकल से एंड लीव्स में स्टोमेटा से. ओके, दिस माउस इज नॉट वर्किंग. स्टोमेटा. सो रेस्पिरेशन इन लीव्स कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस एंड ऑल दैट. सो वहाँ से स्टोमेटा में से एयर आ जाती है एंड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओनली वी कैन लाइक द प्लांट्स कैन टेक द dissolved air, not oxygen but carbon dioxide. Okay, so there is a difference in chloroplast and mitochondria. I don't know why I put this because अगर आपने photosynthesis and respiration में difference देखा होगा, so it's simple. So in photosynthesis what happened, or chloroplast, they use light energy to make glucose, but mitochondria में क्या करते हैं, they break down that down to make the ATP. Plant cell में भी this happens. So chloroplast energy यूज करके ग्लूकोज बनाता है एंड ये उस ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी या एनर्जी बनाता है इन प्लांट. ओके ओके, द सेम थिंग, राइट.
cellular respiration, photosynthesis, make it, break it, make it until you can break it, make the energy so that you can break it, whatever. ओके, अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन देखेंगे, दैट इज अमीबा. इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है. I'll explain you in another video about everything about amoeba, digestion, respiration. But for now इसमें क्या होता है, एयर जो है वो डायरेक्टली आती है, डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है. दिस इज सिंपल डिफ्यूजन. अर्थवॉर्म क्या होता है? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. अब सपोज दिस इज अर्थवॉर्म. आई एम गुड एट ड्राइंग बट दिस इज लाइक डिजिटल थिंग. सो ये जो रेस्पिरेशन करता है वो बॉडी के थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है. दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि जो अर्थवॉर्म है उसका रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है. अब स्किन से हो रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स सिंपल डिफ्यूजन ही होगा. एंड लेट्स लुक इनटू द फिश. सो इनके पास तो गिल्स होते हैं. एंड ग्रास ऊपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बेसिकली ऑल द इंसेक्ट्स जिनके 2 feet लाइक जॉइंट होते हैं, मे बी द आई डोंट नो द क्लास. सो इनके पास टाइनी होल्स होते हैं, नोन एज स्पायरिकल्स. और तो वहाँ से ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं. फॉर लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन, लाइक टाइगर, लाइक काउ, लाइक डियर, इनके पास लंग्स होती है. एंड फॉर फ्रॉग्स क्या है? एम्फीबियंस है. इनके पास ये वाटर में भी रहते हैं, कभी कभी बाहर भी रहते हैं. तो इनके पास लंग्स भी है, स्किन्स भी है. डबल साइड के हैं ये फ्रॉग्स, कहीं पे भी चले जाते हैं. दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये लास्ट चीज है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है. आई पुट द एम्प्टी स्लाइड्स. ओके, नाउ विल लुक इनटू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. अब ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है, वेट वो लंग से होता है. कहाँ से होता है? सी, आप ना 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, बट आई से कि 1.5 में देखना. सो लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन समझने से पहले आई प्रिफर दैट मैं आपको ब्रीदिंग बता दूँ. तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ऑक्सीजन या कोई भी एयर को जब अंदर लेते हैं, दैट इज ब्रीद इन. और जो यूजफुल नहीं होती है उस एयर को बाहर रिलीज करना फ्रॉम द बॉडी, दैट इज ब्रीद आउट. सो दिस इज इनहेलेशन and this is exhalation. Exhale, inhale, exhale. You should do it with me. Inhale, exhale. Okay, इसको बोलते हैं हम breathing, breathe in, breathe out. Okay, मैं एक बार इसको फिर से इरेज कर रही हूँ. I'm making lungs. I'm trying to make, you know, that rib cage or whatever you can say. Wait. I'm very bad. I should erase it. मैं ऐसे ही समझा देती हूँ. So this is diaphragm. This is diaphragm, the same. And यहाँ पर ना lungs है हमारी. अब तो ये लग ही रहा होगा lungs की तरह. मैं बना के रहूँगी, मतलब रुक जाओ यार. मतलब मैं कलर चेंज होता तो फिर लगता. अपने बुक्स में डायग्राम्स देख लो ना. सो सी, क्या होता है जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये बाहर की तरफ मूव होता है, मूव आउटवर्ड, डाउनवर्ड्स, आई मीन नीचे. ठीक है. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं मूव अपवर्ड, और या एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट. अब हम पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, वेट, आई विल ट्राई. सी, यहाँ माउथ कैविटी है, और ये मैंने पूरा आई मेड द, ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज डायफ्राम. यहाँ से तुम्हारा लेवलिंग भी हो रहा है. ठीक है. ये जो है वो डायफ्राम है. स्पेलिंग देख लेना. उसके बाद सी, ये मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. ये माउथ है. ठीक है. माउथ जहाँ से फूड अंदर आता है.
वो, और ये सॉरी ये नोसल कैविटी है, ये नीचे वाला माउथ है। हम माउथ नहीं बनाएंगे वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड अब मैं इसको 2 में डिवाइड करती हूँ, और ये थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री में कैसा होता है, वैसे टाइप में बोल सकते हैं। देयर वाज वन मॉडल जिसने ये स्ट्रक्चर इंस्पायर होके, नाम नहीं ले रही मैं, स्ट्रक्चर इंस्पायर होकर अपनी ड्रेस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवाई थी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन शायद पढ़ लिया होगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगता है, ठीक है। आई होप इतना काफ़ी है समझने के लिए। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तुम लोग भी। सो अब हम नेमिंग देखते हैं। सो क्या होता है, नेसल पैसेज है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया था, दिस इज pharynx, उसके बाद देयर इज अ larynx, ये जो है ये वाला पार्ट, देन देयर इज ट्रैकिया, ये जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और देयर इज अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है। सो क्या होता है कि ये ना कोलैप्स होने से बचाता है, किसको, ये जो लंग्स हैं उनको। This is very hard, I mean to draw this in the digital thing with the mouse. Okay, और उसके बाद there is a further division known as bronchus, then उसके बाद एक और डिवीजन जिसको बोलते हैं हम bronchus के बाद there is a bronchiole, I don't know what to, and then this is alveoli. Okay, so alveoli ये जो होता है ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है बेसिकली ह्यूमन में। यहाँ पे सारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें होता क्या है। डायग्राम समझ में आया? सो दिस इज द डायग्राम, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles and then the alveoli, और उसके नीचे डायफ्राम, और ये जो alveoli है that is the side of respiration, ठीक है। अब क्या होता है जब हम एक एक चीज I'll explain। सबसे पहले हम वी आर ब्रीदिंग, हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एयर जो है वो अंदर आती है एंड वो इट अटैचेस टू द रिब केज एंड वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। तो इस एक्सपैंड की वजह से जो चेस्ट है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, किसकी? एयर की ऑफ कोर्स। तो इस पहले सी आई शुड राइट ब्रीथ इन, हमने इन किया किसको? एयर को। उसके बाद जो डायफ्राम है वो मसल से अटैच होने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आई राइट कि डायफ्राम अटैचेस टू द रिब केज। अटैच क्यों हो जाता है? बिकॉज वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो एक्सपांड होने लगता है। चेस्ट, हमारी जो पूरी चेस्ट कैविटी है दैट एक्सपैंड्स, ठीक है। क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, किसका? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, किसका? चेस्ट कैविटी का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, कहाँ पर? चेस्ट कैविटी। ओके, तो हम कहाँ थे? एयर प्रेशर पे। एयर प्रेशर चेस्ट कैविटी के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, एयर फ्रॉम जो बाहर है वो अंदर आने लगती है लंग्स के अंदर। कहाँ से? नोस्ट्रिल और ट्रैकिया, ब्रोंके, वो जो भी वे था हमारा वहाँ पे। और ये जो हमारी लास्ट चीज़ क्या थी? एल्वोलाई। वहाँ पर एल्वोलाई में फिक्स मीन्स गैसेस जो हैं वो भर जाती हैं। इट के एल्वोलाई ऑफ द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन और इवन द सम ऑफ द थिंग्स which are not oxygen, some of the molecules. So basically the air rich in oxygen comes in alveoli. Okay, now what happened, this alveoli, we have studied this many times that if this are the alveoli के आसपास ब्लड कैपिलरीज या ब्लड की जो थिन वेसल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड कैरी करते हैं, वो ब्लड कैरी करते हैं। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है फ्रॉम सी दिस इज द मेन थिंग,
एल्वोलाई है, उसके आसपास ना ब्लड कैरिंग कैपिलरीज होती है, जिस कैपिलरीज जो ब्लड कैरी करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है एल्वोलाई के अंदर, वो क्या होता है, एल्वोलाई के वॉल से ब्लड में चला जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन। ओके, नाउ ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन रिच हो जाता है, और ये जो ब्लड है, सी क्या होता है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन गोज टू ब्लड, एंड ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है, हर जगह रहता है। तो ये जो ब्लड है यहाँ, ये ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट में कैरी करता है। एंड कौन हेल्प करता है, रेड पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे ये, अब सपोज मेरे पास एक किडनी है और किडनी पे कोई ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन रिच है, तो क्या होगा, किडनी के जो छोटे छोटे टिश्यूज होंगे वो सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देंगे। बेसिकली ये वाली चीज़ हम ना थोड़ा लेट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, बट क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के बाद after reaching the blood, the blood which is rich in oxygen goes to different tissue, हर एक टिश्यू के पास जाता है और वो टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर लेता है। किससे, सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे यूज करता है, लाइक वो सिंपल डिफ्यूजन से, यूजेज विल स्टडी लेटर, बट वो ऑब्जर्व कैसे करता है, लाइक ले कैसे लेता है, थ्रू डिफ्यूजन। सो दिस वॉज वेरी सिंपल प्रोसेस। और फिर वो जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इन सब में हेल्प होने लगता है। सपोज एक एक सिंगल सेल की बात करते हैं। सपोज मेरे पास ये सेल है, टिश्यू की भी छोड़ो, सेल है, यहाँ पर ब्लड आया, उसमें ऑक्सीजन मुझे इस सेल में दी, तो अब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलाकर हम रेस्पिरेशन बनाएंगे, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड इसकी वजह से जो एयर है वो हमारे एल्वोलाई में आने लगती है थ्रू ऑल द पैसेज, जो भी है, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकियल, ब्रोंक्योलोस, एवरीथिंग। और एल्वोलाई ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं, एंड ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ब्लड कैरी करते हैं। एल्वोलाई के वॉल्स के थ्रू ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है, एंड नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड flows all through our body and it reaches to single particular tissue, and our tissue uses this oxygen for the cellular respiration. So respiration यहाँ पर complete हो जाता है। Okay, मैंने ये slide extra किसी चीज़ के लिए रखी थी, that is what is rate of breathing. Okay, let me write it. थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट आई थिंक आपको बने रहना चाहिए ताकि आप पढ़ सको। रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है, जो भी एक इंसान है उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है 15 to 18 मिनट्स, 18 टाइम्स पर मिनट। ये रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन होता है। ओके, 15 to 18 टाइम्स इन एडल्ट। सो यस, वी आर डन विथ रेस्पिरेशन. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit like, share, subscribe and everything. You know what to do, right? Next video में we'll study about transportation, and उसके बाद we'll study about the excretion. I hope that you really enjoyed studying with me. Take